So good evening, guys. Last day we have started this chapter called Glimpses of India, in which there are three portions that were there, which describes different uh, parts and different ideas about, different locations about India. And we completed this part called A Baker from Goa by Lucio Rodriguez, and now we'll be starting with the next part of this chapter, which is Coorg by Lokesh Abrol. Okay, so let's start with the chapter without much wasting time, because I hope the earlier section is quite clear to you, and if there is anything that is not clear to you, please do ask me, which you do not do in the group. And yes, I should tell myself that I'm one of the most proudest teachers that one can have, to have students who just understands everything in just one go. Okay, let's start with the next part of the chapter, which is titled Coorg by Lokesh Abrol. Okay, let's start. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. The land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So, the writer here describes a location that is Coorg, which is located in South India. Okay, somewhere in Tamil Nadu. Okay, yeah, I suppose, yeah, Tamil Nadu. Okay, I'm sorry, it's not Tamil Nadu, it's Karnataka. My geography is getting like rusted, मतलब उसमें जंग पड़ रहा है दिन वो ना करते हुए, ठीक है। तो ये जो है ये Mysore and Mangalore all are in Karnataka. I'm sorry, that's where I did mistake. Okay, yeah. So here the author जो author है लोकेश अब्रोल, वो कर्नाटका के एक छोटे से हिल टाउन कुर्ग के बारे में बोल रहे हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है। द फर्स्ट पैराग्राफ दैट वी स्टडीड इज डिस्क्राइबिंग द locational, the geographical location of that place. Okay, and it is situated midway between the Mysore and the coastal town of Bangalore. That is, Mysore एक तरफ है और मैंगलोर जो है कोस्टल टाउन है। मतलब मैंगलोर जो सिटी है, अभी सिटी है, तब शायद टाउन था। अभी सिटी जो है वो समुद्र के उसके पास है, सागर के पास है, तो कोस्टल टाउन है। और मैसूर पैलेस जो सबसे फेमस है, उसका फेमस मिठाई भी है, मैसूर पाक बोलते हैं उसको। तो उन दोनों के बीच में है, ठीक है। इस तरफ मैसूर है, उस तरफ मैंगलोर है, इसके बीच में जो है वहाँ पे कुर्ग सिचुएटेड है। तो कुर्ग इतना सुंदर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि देख के लगता है कि ये एक हेवन का जैसे टुकड़ा है, स्वर्ग का जैसे एक पार्ट है, जो भगवान के मतलब किंगडम, मतलब हेवन से किसी तरह से सेपरेट होकर यहाँ अर्थ में आ गया है, ठीक है। द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मतलब एक के बाद ऐसा हिल्स, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रोलिंग हिल्स, नॉट द रोलिंग हिल्स, ऐसा रोल वाला नहीं, ऐसे रोल, मतलब एक के साथ एक, ऐसे जो होता है वो। रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? दे आर मार्शल मीन्स बहुत अच्छा, वो लोग वॉरफेयर जानते हैं, मतलब लड़ाई करने का टेक्नोलॉजी उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वैसे ही एक जाति के लोग, ब्यूटीफुल वुमेन, वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत सुंदर है, और वाइल्ड क्रीचर, साथ में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ रहते हैं। मतलब एकदम नेचर के साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो वॉर टेक्निक्स में बहुत माहिर है, जहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर है। वैसे मतलब एक जाति के लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो जाति जो है थोड़ा हमसे अलग है। कैसे अलग है हम लोग देखेंगे अभी। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. Coorg और उसका एक और नाम है कोडागू, वो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट जिनका पत्ता ऑल थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन रहता है, कभी भी शेड नहीं होता, ठीक है, वैसे पत्ते हैं। स्पाइसेस है, बहुत सारे मसालों का खेत वहाँ पे मिलता है, और कॉफ़ी प्लांटेशन, और जैसे यहाँ पे टी प्लांटेशन है, वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का 30% ही सिर्फ जंगल है। वो भी किस तरह का जंगल है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब इतना सुंदर वो जगह है, मतलब ज़्यादातर पोर्शन इस जंगल है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप विजिटर्स अवे, और
बारिश के टाइम, मानसून के टाइम इतना बारिश होता है कि लोग वहाँ पे जा नहीं सकते। तो विजिटर्स जो है वो बारिश के समय वहाँ पे ज़्यादातर नहीं जाते, वहाँ से अलग रहते हो, ठीक है। मतलब बारिश के सीज़नों में वो टूरिस्ट के लिए एकदम सेफ़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई उतराई है, पहाड़ है, तो उतना सेफ़ नहीं होता लोगों के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो बारिश के टाइम क्या होता है, लोग ज़्यादातर वहाँ पे नहीं जाते। तो कौन सा टाइम सबसे सूटेबल है कुर्ग घूमने के लिए? सितंबर से शुरू होता है, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है उससे शुरू होता है और मार्च तक कंटिन्यू होता है। मतलब ठंडा और जो मॉडरेट टाइप का जो वेदर होता है, जो जिस टाइम ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बारिश कम होता है ठंडा के टाइम, तो वो टाइम थोड़ा कंफर्टेबल होता है कुर्ग घूमने के लिए। The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air breathes of invigorating coffee. और उस समय का वेदर कैसा होता है? वेदर तुम्हारा काफ़ी सुंदर रहता है, बीच बीच में थोड़ा बारिश होता है, जिससे क्या होता है, पूरा जो एनवायरनमेंट होता है उस समय एकदम फ्रेश रहता है। वो सितंबर से मार्च के टाइम का जो होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होता, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शावर्स होता है, जैसे अभी होता है ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश, वैसे वहाँ पे भी होता है। तो चारों तरफ ऐसा फ्रेश रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और एक चीज़ होता है, वो है चारों तरफ कॉफ़ी का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। मतलब कॉफ़ी तब पूरा मेच्योर हो जाता है, कॉफ़ी का जो बीन्स होता है। आई एम श्योर यू हैव सीन दोज थिंग्स इन टीवीज और समथिंग एल्स वेयर यू सी दैट कॉफ़ी का जो बीन होता है वो इतना मोटा मोटा होता है, ठीक है, वो मेच्योर हो जाता है, पूरा पक जाता है, तो उसका एक स्मेल होता है जो चारों तरफ रहता है। इनविगोरेटिंग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल कॉफ़ी का चारों तरफ रहता है उस समय। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज tucked under the tree canopies in prime corners। और कॉफ़ी के जैसे मतलब कॉफ़ी के प्लांटेशन, और कॉफ़ी का प्लांटेशन किन लोगों ने शुरू किया था? ब्रिटिश ने शुरू किया था। और वहाँ पे रहने के लिए उन लोगों ने जो बंगलोज बनाया था वो तो अभी भी रह गए हैं, जिसको कॉलोनियल बंगलोज कहा जाता है, ठीक है। वो ऐसे कुर्ग के काफ़ी प्राइम लोकेशंस में है, जो अभी टूरिस्ट के लिए रहने के लिए दिया जाता है, ठीक है। टूरिस्ट के रहने के लिए वो रेंट पे दिया जाता है वो कॉलोनियल बंगलोज। और वो पूरे जैसे ट्री कैनोपी से कवर्ड है। मतलब कैनोपी मतलब क्या होता है, ऐसे जब जो रास्ते पे जाते हैं जो ऐसा ढका हुआ होता है ना ऊपर, मतलब ऐसा करके रास्ते पे जब कहीं पे भी जब जाते हैं, जो ऊपर का जो ढका हुआ पोर्शन होता है, जो ट्री बनाता है ऐसे ऐसे करके, दो ट्री मिलके या एक ट्री मिलके जो ऐसा बनाता है, उसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एकदम सारे बंगलों को जैसे ट्री का जो मतलब पेड़ों का जो छाव है, वो छाव जिसे ढक के रखा हुआ है, वैसे ही एक कैनोपी, उसको ही कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। उसी से पूरा ढका हुआ है और वो प्राइम लोकेशंस पे है जहाँ जहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। द फ्यूरियसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि कुर्ग के जो पीपल है, दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द कुर्ग वर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम लाइक व्हाट वी सी एज इंडियंस, इज द फ्रॉम द फैक्ट दैट द ऑथर इज सेइंग दैट कि ये जो कुर्ग के जो लोग हैं वो उनके पूर्वज जो है, उनके फॉरफादर्स जो है, वो शायद इधर ग्रीक से हुए होंगे या फिर अरबिक डिसेंट या फिर अरब से हुए होंगे, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो गेटअप है, उनका जो मतलब ड्रेस है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मल इंडियन लोगों से नहीं मिलता। तो ऑथर बोल रहे हैं कि शायद इन लोग के जो पूर्व पुरुष रहे होंगे, या मतलब इनके जो पूर्वज रहे होंगे, इनके जो फॉरफादर्स रहे होंगे, वो शायद इस इंडिया के डिसेंट ना हो, वो शायद मतलब दूसरे जगह से आए हो, यहाँ आके सेटल हो गया, और उसके बाद उनका जो डिफरेंट बाद वाले जनरेशन है वहीं पे रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो शायद एक या दो स्टोरीज भी बता रहे हैं कि किस तरह से कुर्ग में सेटलमेंट शुरू हुआ, किस तरह से कुर्ग के लोग आए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो एक स्टोरी है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में आए थे अटैक करने के लिए, जिनको पुरु ने हरा दिया था, पुरु वन ऑफ द एंशिएंट हिंदू किंग्स ऑफ इंडिया, पुरु ने हरा दिया था अलेक्जेंडर को। तब अलेक्जेंडर का एक आर्मी का एक छोटा सा सेक्शन था जो घूमते घूमते एकदम साउथ की तरफ आ गया था। वो लोग किस तरह से अटैक करने थे, वो लोग आए थे तुम्हारा जो पाकिस्तान अभी जिस तरफ है, ठीक है, उस तरफ से वेस्ट से आए थे, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन जिसको बोलते हैं, उस तरफ से आए थे वो लोग अटैक करने। तो वहाँ पे तो वो लोग, उन लोगों ने अपना छावनी वावनी मतलब अपना टेंट वेंट लगाया था, वहाँ पे रहते थे, वहीं से तुम्हारा फाइट भी हुआ। तो वहाँ से कुछ सेक्शन ऑफ जो तुम्हारा सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, वो धीरे धीरे मतलब घूमते वो लोग साउथ की तरफ आ गए, और साउथ की तरफ आके उन लोगों ने देखा कि यहाँ से रिटर्न करना अभी इम्प्रैक्टिकल हो गया,
क्योंकि उनका आर्मी डिफीट हो गया है। अगर वो रिटर्न करना चाहे तो शायद उन पर और अटैक हो सकता है, क्योंकि ये जो किंग था, तो पुरु जो थे, वो उनका ज़्यादातर रूल कहा था नॉर्थ इंडिया की तरफ ही था, साउथ की तरफ इतना नहीं था। तो साउथ की तरफ उनका उतना लोग नहीं जानते होंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए, जस्ट जानते होंगे कि वो बाहर से आए हैं। तो यही सोच के उन लोगों ने जब देखा कि यहाँ से रिटर्न करना इम्प्रैक्टिकल हो गया है, मतलब एकदम भी पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पे वो लोग सेटल हो गए। कैसे सेटल हुए? दिस पीपल मैरीड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, marriages, martial traditions, marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो वो लोग वहीं पे सेटल हो गए। कैसे? वहीं के लोकल जो लोग थे उनसे शादी वादी कर ली, ठीक है, और वहीं पर मिलकर उन्होंने अपने कल्चर एस्टेब्लिश करना शुरू किया। और उनका कल्चर अपेरेंटली क्या था, मतलब ज़्यादातर उनके कल्चर में कौन सा चीज़ जो सबसे सिग्निफिकेंट था, सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो था उनका मार्शल ट्रेडिशंस, मतलब लड़ाई करने की टेक्निक्स, लड़ाई का जो उनका जो स्किल था वो। दूसरा मैरिज, उनका मैरिज भी बहुत डिफरेंट था। और तीसरा था उनका रिलीजियस राइट्स, मतलब वो लोग रिलीजियन के नाम पे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उनका मतलब जो रीति रिवाज है वो करते थे, वो एकदम भी सिमिलर नहीं था जो हम हिंदू लोग करते हैं, ठीक है। द रिचुअल्स एंड अदर थिंग्स दैट वी एज हिंदूज परफॉर्म was completely different from what these people used to perform as their religion, ठीक है। तो यही सब ऐसे ये लोग सेटल हुए, ठीक है। ये था ग्रीक ओरिजिन का, मतलब ये वो स्टोरी था जो बोल रहा है कि वो लोग ग्रीक से आए हैं, ठीक है। उनके पूर्वज जो है, उनके फॉरफादर्स जो है वो ग्रीक से आए। दूसरा एक स्टोरी है जो उनके अरब ओरिजिन, मतलब अरब से कैसे वो लोग आए वो बता रहा है, ठीक है। ये कोई भी स्टोरी लेकिन प्रूफ नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टोरी का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई एकदम फॉर्मली एस्टेब्लिश कोई थ्योरी नहीं है इनके बारे में कि ये लोग कहाँ से आए और कैसे सेटल हुए। ये दो स्टोरीज लोग बोलते हैं और लोग बिलीव करते हैं कि आइदर ये लोग ऐसे ग्रीक से आए होंगे या फिर अरब से आए होंगे, क्योंकि उनका फीचर्स उन दोनों से कुछ सिमिलर होता है। लेकिन किसी का भी कोई ऐसे मतलब सच्चाई का कोई सबूत नहीं है कि किसी भी थ्योरी को ऐसे एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो इसीलिए दोनों स्टोरी ही पॉपुलर है। कुछ लोग ये मानते हैं तो कुछ लोग दूसरा मानते हैं। तो दूसरा जो है, जो अरब ओरिजिन वाला स्टोरी है, वो इस तरह है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat which was with an embroidered waist belt worn by the Kadabus, known as Kuriapa. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अरब थ्योरी वाला ये बोलते हैं कि ये जो उनका जो ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उनका, ठीक है, जो कि वो लोग लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, ठीक है। एक वो यहाँ पे अगर तुम लोगों के पास बुक है तो बुक के पास तुम लोग एक देखो, एक पिक्चर भी दिया हुआ है, वहाँ पे एक लॉन्ग ब्लैक कोट जो था, जिसको हम बंगाली में अलखल्ला बोलते हैं, ठीक है, वो पहनते हैं, ठीक है। और उनका विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उनका जो उस जो लॉन्ग ब्लैक कोट के ऊपर जो वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, मतलब कमर पे जो वो बेल्ट पहनते हैं, वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, मतलब सुंदर से उस पर कारीगरी की होती है, सिलाई विलाई कढ़ाई वढ़ाई किया हुआ होता है। और वो कौन पहनते हैं? कडाबूज। कडाबूज मतलब उन लोग, वो कुर्द के लोकल लोगों को कडाबूज बोलते हैं, ठीक है। कुर्द के लोकल लोगों को कडाबूज बोलते हैं। और उस ड्रेस को क्या बोलते हैं? उस ड्रेस को बोलते हैं कुपिया या कुपिया, 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 ठीक है। और ये मतलब एकदम से सिमिलर है कुफिया के साथ, जो कि अरब लोग पहनते हैं, अरब या कुर्द लोग। कुर्द मतलब जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं उनको कुर्द बोलते हैं। मतलब अरब या कुर्द लोग जो पहनते हैं ना, तुम लोग देखते हो शेख्स, जिन लोगों को हम बोलते हैं शेख लोग, जैसे बोलते हैं एक वाइट या ब्लैक कलर का जो एकदम वो एक पूरा सर से लेके पैर तक ढका हुआ एक नाइटी की तरह, ठीक है, एक वो पहनते हैं, ऊपर से एक टर्बन होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही सिमिलर है दोनों ड्रेस। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं, इसलिए उन लोग का ड्रेस बहुत सिमिलर है, तो शायद ये लोग अरब से आए होंगे, इनके पूर्वज या उनके फॉरफादर्स, ठीक है। तो यही दोनों स्टोरीज बहुत ही फेमस है इन लोगों में, इनके ओरिजिन्स को लेकर, ठीक है। तो ये तो गया कि वो है कहाँ पे, मतलब उसका टूरिज्म कैसा है, कब जाना चाहिए, उसके लोग कैसे, उनके ओरिजिन्स कैसे। अब देखते हैं कि कहीं से भी आए हो, चाहे वो ग्रीक से आए हो, अरब से आए हो, मार्च से आए हो, कहीं से भी आए हो, लेकिन वो है कैसे, वो थोड़ा देखते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो
कुर्गी जो घर है, ठीक है, जो कुर्गी लोगों का जो घर होता है, उनका ट्रेडिशंस जो होता है वो बहुत ही मतलब उनके ट्रेडिशन में बहुत हॉस्पिटलिटी होता है, ठीक है, मतलब बहुत लोगों को बहुत वो लोग वो करते हैं, मतलब मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेहमान नवाजी, ठीक है। उनका मेहमान नवाजी बहुत ही फेमस है, वो बहुत लोगों को ट्रीट करना पसंद करते हैं, उनको रखना खिलाना कुछ करना बहुत पसंद करते हैं। एंड दे आर more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। और वो लोग जब लोग उनके पास रहते हैं तो लोग एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि वो लोग लोगों को उनके फादर सन्स या उनके पूर्वज लोगों के जो मतलब साहसी कारनामों के जो कहानियाँ होती है ना, वो उनको सुनाना बहुत पसंद है। लोगों को वो बहुत सुनाते हैं वो सब चीज़, उनके साहसी कारनामों को वो लोग सुनाना बहुत मतलब प्राउडली प्रेजेंट करना बहुत मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब हमारे में भी जैसे होता है ना कि हम प्राउडली अपना कल्चर अपनी लीगेसी के बारे में बोलते। काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मेरे तो पूर्वज पहले ज़मींदार रहे थे, ये था वो था। तो उनका भी ऐसे लीगेसी के जो मतलब वॉर टेक्निक से कैसे उनके लड़के फादर्स फॉर फादर्स दादाजी वो लोग कैसे वार में गए, वार किया। वार इसका मतलब सिर्फ राजा वाला वार नहीं, ठीक है, सिर्फ वो तलवार लेके वाला वार नहीं, मतलब बाद में जैसे वार होता था लाइक आर्मी में जाना, वहाँ जाके वार करना। तो उन लोगों को अपना साहस, अपना पराक्रम, अपना जो करेज वैलर, ठीक है, उस पर बहुत प्राइड था और वो लोगों को वो बहुत दिखाना सुनाना पसंद करते थे, ठीक है। और इसी के चलते हमारा जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसमें अलग से एक रेजिमेंट है, अलग से एक ग्रुप ही है जिसमें सिर्फ कुर्ग लोगों का ही रिक्रूटमेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर स्किल ऑफ वार, ठीक है। The Kurk regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi। तो उसी के चलते इंडियन आर्मी में जैसे मैंने बोला कि एक अलग सा रेजिमेंट है, अलग सा ग्रुप ही है आर्मी का, जहाँ पे सिर्फ कुर्ग लोगों को अपॉइंट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर मास्टरी ऑफ वॉर टेक्निक्स दैट नन ऑफ द अदर ग्रुप्स नो, ठीक है। उसको कुर्ग रेजिमेंट कहा जाता है और सबसे डेकोरेटेड एक रेजिमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा अवार्ड, सबसे ज़्यादा ब्रेवरी, सबसे ज़्यादा सब कुछ जैसे उसी रेजिमेंट में लोगों को दिया गया हो, ठीक है। मतलब जैसे नहीं उसी रेजिमेंट को मिला है, सॉरी, मतलब उस यहाँ पे डेकोरेटिव का मतलब जो समझा रहे हैं ऑथर वो है कि उस रेजिमेंट के ज़्यादातर लोगों को ब्रेवरी अवार्ड्स, ज़्यादातर लोगों को परमवीर चक्र, शौर्यवीर चक्र, जो आर्मी का जो अवार्ड्स होता है वो सब दिया गया है। उसी रेजिमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा वार्स में पार्टिसिपेट करके बहुत से लोगों के साथ मतलब बहुत से जगहों पे बहुत से कंट्रीज़ के साथ फाइट करके विक्ट्री पाया है। तो ये सबसे ऐसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का। और पहला जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वो थे जनरल करियप्पा, जो कि एक कुर्गी थे या फिर कडाबू थे, ठीक है। Even now, Kadabus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और आज के दिन में भी इंडिया में कडाबूस ही सिर्फ एक अकेला ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के कैरी करने का फ्रीडम है, मतलब बंदूक शंदूक वो सब रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, और ये उनको पूरा परमिशन है गवर्नमेंट से, ठीक है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg। तो ये सब तो था कुर्ग का, मतलब कुर्ग कहाँ पे है, कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके लोगों का फीचर्स कैसा है। अब देखते हैं कि कुर्ग का उस जगह पे मतलब कर्नाटका में क्या इम्पोर्टेंस है। तो कर्नाटका का जो मेन वाटर सोर्स है वो है कावेरी रिवर, ठीक है। तो द कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कावेरी रिवर का जो सोर्स है वाटर का जहाँ से आता है, ठीक है, वो है वो कुर्ग का फॉरेस्ट और हिल्स, मतलब जहाँ पे वो स्नोज है, ग्लेशियर्स है, थोड़ा काफ़ी ऊपर है कुर्ग। तो कुर्ग के मतलब कुर्ग का एक ऑल्टीट्यूड तक लोग रह सकते हैं, उसके ऊपर और नहीं रह सकते, वो बहुत ऊपर। तो उस ऊपर में तुम्हारा एकदम ग्लेशियर है जहाँ से पानी ऐसे बह बह के आता है और कावेरी को उसका वाटर सोर्स मिलता है, ठीक है। महासिरे लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। और कावेरी का जो स्ट्रीम यहाँ पे है, मतलब कुर्ग के वहाँ से बह के आता है, वहीं पे एक बहुत बड़ा लार्ज फ्रेश वाटर फिश मिलता है जो कि है महासिर, जिसका ज़्यादातर पॉपुलेशन उसी स्ट्रीम में रहता है।
Kingfishers dive from there for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mystery of enjoying the splash and the ripple effect in the clean water. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो थोड़ा नेचर का ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कैसा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि उसी रिवर्स के ऊपर कभी कभी वो किंगफिशर्स को देखते हैं कि कैसे वो डाइव मार के जा रहा है मछली पकड़ने के लिए, फिर उठ रहा है, उड़ के जा रहा है। फिर कभी कभी दिखता है कि जो पेड़ों के जो डाल है, पेड़ों के जो ब्रांचेस है जिनका पोर्शन शायद नदी के ऊपर आ गया है, वहाँ पे वो देखते हैं कि लंगूर्स और स्क्विरल्स जो क्या करते हैं, वो फल आधा आधा खा के नदी में फेंक देते हैं, और नदी में फेंकने के बाद जो रिपल्स होता है, जो सर्कुलर मतलब पानी में अगर कुछ फेंको तो ऐसा सर्कुलर एक पैटर्न्स नहीं बनता, उसको रिपल्स कहते हैं, ठीक है। वो रिपल्स जो होता है क्लियर वाटर में जो होता है वो देखने के लिए एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द माहौट्स। और उसी रिवर में वो कभी कभी देखते हैं कि माहौत लोग, मतलब जो एलिफेंट का जो ओनर होता है, जो एलिफेंट को चलाता है, मतलब जब पेट एलिफेंट्स जो होता है, जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स होते हैं, नॉट वाइल्ड वाले, जो माहौट्स होते हैं, वो एलिफेंट्स को लेके आते हैं उस नदी में, नहलाते हैं, स्क्रब करते हैं, वो कैसे इंजॉय करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे बहुत सुंदर से एक सीनरी क्रिएट करता है। The most laid-back individual become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. तो वो बोल रहे हैं कि सबसे लेज़ी वाला आदमी भी अगर होगा, सबसे लेज़ी वाला आदमी भी अगर वहाँ पे जाएगा, वो भी बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, जैसे राफ्टिंग मतलब रिवर में एक राफ्ट में, ठीक है। राफ्ट मतलब क्या होता है, एक छोटा सा नाव की तरह होता है, ठीक है, जो एकदम कॉम्पैक्ट सा होता है, वहाँ पे जाके एकदम रिवर के स्ट्रीम के साथ फ्लो करके जाना स्पीड में, ठीक है, उसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। और पहलों के दिनों में ये राफ्ट क्या होता था, राफ्ट ऐसे वुडन प्लैंक्स को ऐसे एक के साथ एक जोड़ के बनाया जाता था, ठीक है, एक वुडन प्लैंक के साथ एक वुडन प्लैंक ऐसे 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 करके फिर टाई करके बनाया जाता था। लेकिन अब के दिनों में प्लास्टिक या फिर वाटर रेजिस्टेंट चीज़ों से भी बनाया जाता है, तो उसको लेके राफ्टिंग करना, ठीक है, एकदम बहुत ही वो होता है, क्योंकि कोई सेफ्टी का मेजर्स नहीं होता है उसमें, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लाइफ जैकेट दैट यू वेयर। सो वो सब करना। फिर कैनोइंग, ट्रेवलिंग इन ए रिवर, कैनोए जो होता है, ठीक है, कैनो मतलब एक तरह का नाव होता है, ठीक है, कैनो मतलब एक तरह का नाव होता है, वो नाव में रिवर में ट्रेवल करना, ठीक है, वो सब। रैपलिंग मतलब हिल के, मतलब रॉक माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब उठना, और राफ्टिंग मतलब एकदम ऊंचे में पहुंचना, फिर वहाँ से नीचे उतरना, ठीक है। तो वो सब बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट है जो किसी भी आलसी से आलसी, लेड बैक मतलब बहुत आलसी से आलसी रिलैक्स पर्सन को भी बहुत ही एडवेंचरस कर देगा। ऊपर से माउंटेन बाइकिंग भी है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर द फेवरेट विद ट्रेकर्स। और उसके ऊपर मतलब पहाड़ों के बीच में बहुत सारा वॉकिंग ट्रेल्स है, मतलब लोगों के जाने का रास्ता है, जो पकड़ के क्या करते हैं, लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन वहाँ पे है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। उसके साथ साथ जब पहाड़ों पे तुम जाओगे, वहाँ पे तुमको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे, बटरफ्लाइज मिलेंगे, जो तुमको कंपनी देंगे। उसके साथ साथ कैसे तुम्हारा वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे मकाउस है, एक तरह का मकाउस मतलब एक तरह का मंकी, ठीक है, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लोरीज मतलब एक तरह का बियर की तरह होता है, ठीक है। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और सब जैसे मतलब जैसे तुम जाओगे तो ऐसा लगेगा कि सारा पैरों में से वो लोग जैसे तुम्हें देख रहे हो, वॉचफुल आई रख रहे कि कहीं तुम उनको अटैक करने तो नहीं है। इतना सारा मतलब वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे भरा पड़ा है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और उसके साथ साथ उन जंगलों में वाइल्ड एलिफेंट्स भी है। और ऑथर बोल रहे हैं कि ये सब तो अच्छा मैं देख लूँ, लेकिन जब वाइल्ड एनिमल्स आता है तो मैं थोड़ा साइड दे देता हूँ भाई, क्योंकि वो अगर उसके सामने अगर आ गया तो वो मुझे मार के चला जाएगा, तो वो थोड़ा साइड दे देते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। और सबसे ऊंचा वाला जो पहाड़ है कूर्ग में वो है ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। और अगर तुम ब्रह्मगिरी की हिल्स के ऊपर पूरा पहुंच जाओगे तो एक पैनोरामिक व्यू मतलब एक होल व्यू मिलेगा तुम्हें कूर्ग का, कूर्ग के मिस्टी लैंडस्केप का। मतलब मिस्टी मतलब जो तुम्हारा वो होता है धुंध जो होता है, कुआशा जिसको हम बंगाली में बोलते हैं, फॉग जो बोलते हैं, ठीक है, एकदम फॉग चारों तरफ से वो हुआ एकदम कवर्ड एक लैंडस्केप, पूरा कूर्ग का लैंडस्केप देखने को मिलता है अगर तुम एकदम ब्रह्मगिरी के ऊपर उठ जाओ।
A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। और उस ब्रह्मगिरी हिल से 64 एक रोप वे है, मतलब ऐसा हिल्स है तो हिल्स चारों तरफ और बीच में एक आइलैंड की तरह है, ठीक है। मतलब वहाँ पे सिर्फ एक हिल से दूसरे हिल से ही जाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो चारों तरफ हिल्स है, बीच में एक आइलैंड की तरह है जिस कनेक्टेड किससे किया गया, एक रोप वे, एक रस्सी का मतलब रोप वे जैसा होता है ना, यू हैव टू क्लाइंब दिस थिंग। एक बॉक्स होता है, बॉक्स में तुम बैठते हो एंड थ्रो इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग, द बॉक्स इज मूव थ्रू द रूप, तो एक रोप वे है। तो उस रोप वे से तुम वहाँ पे जा सकते हो। वो एक आइलैंड की तरह है जिसको जो काफ़ी बड़ा है, 64 एकड़ का है, बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि है निसर्गधाम। और वहाँ पे क्यों, मतलब वो आइलैंड किस लिए फेमस है, वो आइलैंड बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए फेमस है। उस आइलैंड को रनिंग इनटू ए बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर ब्यालाकुप्पी इज ए बोनस। और वहाँ पे कौन लोग ज़्यादा सेटल्ड है, तिब्बत लोग, इंडियन तिब्बतियंस, ठीक है, जो लोग तिब्बत से इंडिया आ गए और सेटल हो गए। उसमें इंडिया का सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है वो निसर्गधाम है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और वही वो उस जगह को पूरा इनहेबिटेड किए हुए वही लोग रहते हैं, वही चलाते हैं, ठीक है। और उसके पास वाला एक और जगह है ब्यालाकुप्पा, ठीक है, वो भी बुद्धिस्ट तिब्बतियन बुद्धिस्ट सेटलमेंट है, जो कि बोनस है अगर हम वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। The monks in red, ochre or yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और वहाँ पे monks जो है कोई रेड कलर का ड्रेस पहने हुए है, कोई येलो है, कोई ऑकर, ठीक है, मतलब जो ऑरेंजी शेड होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर का रोब्स, मतलब वो कपड़ा जो होता है उसको रोब्स बोलते हैं, वो पहने हुआ है, ठीक है। तो शायद जो कूर्ग घूमने आए, ठीक है, और जिनको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, उनके लिए शायद एक सरप्राइज़ हो और वो समझ पाए कि इंडिया का हार्ट एंड सोल सिर्फ मतलब सिटीज़ में या हिल स्टेशंस के मेन जगहों पे ना हो। काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ पे इंडिया को हम और नई तरीके से जानते हैं, इंडिया के वैरायटी, इंडिया के डाइवर्सिटी को हम और अच्छी तरह से सुंदर तरीके से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो वही शायद यहाँ कूर्ग में भी हम लोग जान पाए, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडिया, तो जो लोग इंडिया का हार्ट एंड सोल खोजने के लिए कूर्ग में आ रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए शायद ये भी एक सरप्राइज़ हो कि इंडिया कितना डाइवर्स है, अगर वो देख पाए कि कैसे यहाँ पे एक इतना बड़ा तिब्बतियन इंडियन सेटलमेंट है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, जो तिब्बत से इंडिया में आए और आके यहाँ इतने दूर, इतने सबसे अलग एक जगह पे सेटल हुए, क्योंकि शायद वहाँ पे उनको बहुत साइलेंस मिलता है, शायद वहाँ पे बहुत शांति मिलता है। तो ये भी इंडिया के लिए, इंडिया का एक अचीवमेंट है, इंडिया के डाइवर्सिटी में एक एडिशन है, ठीक है। तो यही है कूर्ग, ठीक है, यही है कूर्ग, ठीक है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। तो यहीं पे आज एंड करते हैं। इसके बाद इसका एक और पोर्शन है 3 असम, दैट आई विल डू इन द फ्राइडे क्लास एंड देन दिस chapter will also be finished, okay, so bye for now.